Good evening and welcome to Gana Shot. Today we are going to talk about panic stations in China. And to talk about panic stations in China, I have with me my old friend and good friend, Rajiv Narayanan. Hi Rajiv, welcome back Hi, sir. to Gana Shot. Nice to be Long on your time. show again, sir. Yeah. Yes, been a while, Okay. but yes, I would Yeah. add to what you say that हम पाकिस्तान के बारे में तो बात करते रहते ये हो रहा है वो हो रहा है. We should keep our eyes focused to the north also All because it those. has a geo-economic fallout, a Uh, geo-economic fallout which could affect us, yeah. which is the most important part. Pakistan falling apart doesn't have a geo-economic fallout. It is NFA, riffraff. ये Yeah. इसका है उसकी If, तैयारी हमको करनी चाहिए. yeah. All right. Now, what? Let me put the thing in context. We just, half an hour back, I finished uh, overview about what's happening between Israel and Iran. I explained to everyone. I told them, look, join in. We're going to start with General Rajiv Narayanan, and this is probably the more important thing than that. Okay. Why do we need to go into China in a big manner? Let me put the major issues, and then we'll get into the whole story. One, without any doubt, this Iran, Israel, Hezbollah, Houthi, Hamas has taken a new turn today in the past 48 hours. And this tensions will continue. It's not going to be going away. All those fancy things which people spoke of, cricks and pricks and all that nonsense, Shia Sunni patch up and Iran Saudi patch up, all have gone. It's all khatam. Okay, that's the thing. So China is actually going to be the loser of the Middle East story. It's trying to claw its way in. That's that part. Internally, the PLA is where it is. Already some news of submarine sinking and they're going with the ICBM and all that. Many issues which I've discussed last week. What's the significance of that launch? Their economy is on steroids now. Okay, they had to resort finally to a stimulus which is put them on steroids. Now, but we'll discuss that also. Demography, one way down. Property, one way down. 18 million houses vacant. It's not a joke. Okay, it's not a joke at all by any stretch of imagination. A lot of problems. Yet, despite all this, it is showing faces in South China Sea, still doing air violations on Taiwan Strait, acting tough with us. Till about 4-5 years back, or 2 years, 3 years back, we were talking of China as a threat, as a nation which is rising. Today, we have to start thinking of China as a threat, as it has peaked and it is declining. The declining threat to me is more important than the rising threat. When a nation rises, it has a confidence of rise. When a nation declines, it's an unsure nation and an unstable nation as it declines. And that nation is more prone to go to war than otherwise. And that is why, talking of panic in China is important. And that's why General Narayanan and I had a discussion. It's not as if, out of the blue, we're going to show you some slides and talk about it. We've had discussions as to what we need to present to you. It's a well thought out plan. Before we start the presentation, I'd like your comment on what I've said, Rajiv, and then we'll start the I would only say that you're being overconfident to say that the stimulus is putting their economy on steroids. I would say it is putting their economy on drips. IV drip therapy. Okay. The reason being they have no solution. There, yeah. I'll explain in the slides also Yeah, why we'll talk about
there are no solutions. They haven't got the solution. And media hype is one thing, but I'll explain certain things which is going to be very damaging what they have done. Yeah. Shall we start? Yes, sir. So that is where the second point I put is the spiraling slide controllable with a question mark. The slide has literally spiraled out of control. And why? We go to the next ones. Yeah. So I will just touch on economy, the unemployment spiral, reverse migration, which is very dangerous, that from urban to rural they're going, and of course the demographic line. And I call the PLA a bumbling PLA. It is one step forward, two step back. They fire a missile, we don't know what it was. Some say it is DF-41 or some other of DF-31 or 21. But then he does that. First time ever in 80 years firing it into close to the South Pacific area, they claim. No proof as yet, nobody has confirmed. And then you have the sinking of the latest nuclear sub. That's why I say one step forward, two step back. Now you don't know whether it was the superstructure, whether it was a nuclear sub. If it was a nuclear sub, what the hell was it doing in Yangtze River? Yeah. And not only that, this is not the first instance of a sub going down. This is probably the third instance where the sub is going down. This is supposed to have happened sometime in March. And they're not confirming if the nuclear fuel was also there. If it was there, just imagine what would happen to Yangtze now. That is most dangerous. They're playing with people's life. How many millions of people live along the Yangtze? And if that has happened, what has happened? And of course, we'll talk of internal fissures, this gang of four which I've spoken about, and the restive population. So can we go next, sir? Yeah. Now, this is most important. Why it is panic? Economics is supposed to be discussed only in the third plenary, which was delayed from October last year to July, August this year. And we know what happened to Xi Jinping there, and he disappeared. And the report which came out was same will continue. What happened within 2 months? That you have a Politburo meeting to discuss economy. This Politburo October meeting is essentially to finalize what bills are to be signed by the NPC in March. Period. This is a political meeting that, okay, we are getting that NPC, which is the equivalent of parliament, which are bills and acts to be placed there, which they will rubber stamp. And you went into this with economy, which is, and you never discussed anything, what bills you're going to place in the NPC. So I wonder when that is going to happen. And you went against what Xi Jinping had said. Now they've given a stimulus, they claim, by cutting the rates and more fluidity. But they've not taken one major thing into mind, which is called the NIM for banks. That is the net interest margin. What is net interest margin? In layman's language में आपको समझाता हूं. मेरे पास अकाउंट में पैसा है, मुझे कुछ इंटरेस्ट बैंक ने मेरे को देना है. वो एक इंटरेस्ट हो गया जो बैंक ने मेरे को देना, और लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वो एक इंटरेस्ट बैंक को देते हैं. इसका गैप डिवाइडेड बाय टोटल बैंक के एसेट्स कितने हैं, विच विल गिव यू अ परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट टेल्स यू द इंटरेस्ट मार्जिन. नॉर्मली योर इंटरेस्ट मार्जिन वुड बी अबाउट 2.8 एंड अबव is supposed to be healthy for a bank. इतना कट किया है, इतने NPS हैं इनके बैंक्स में. Their banks are working at barely around 1.4 to 1.5, and one of their biggest banks, Agriculture Bank, is in the negative. Do you realize the long-term impact of NIM on banks? As it is, the banks are crashing. 1.5 में क्या करेगा बैंक? किसको लोन दे सकता है? पैसे ही नहीं है मतलब. And this will lead to bankruptcy of the banks. Already reports आ रहे हैं
कि अगर मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपए है, एट एनी गिवन पूरे महीने में 3,000 युआन से ज्यादा मैं निकाल नहीं सकता। 3,000 युआन निकालने के लिए भी मुझे पूरा डॉक्यूमेंटेशन बैंक को देना है कि ये पैसे आए कहां से। यानी दिस इज अमेजिंग। रियलिटी सेक्टर का तो हमें पता ही है, कोई रिस्पाइट है ही नहीं। Let me hold you 1 minute. Let me highlight what this NIM. I mean, just think. Banks are working on wafer thin margins and some on negative margins, like you said, the Agricultural Bank of China. And these banks are the ones who have to give the stimulus. Is this stimulus actually viable? Will this stimulus sink the banks? That's the question I thought probably. बिल्कुल सर, जैसे अगर मैं 3% मेरे को देना है, मेरे पास मैंने अपना पैसा रखा हुआ है, तो मुझे 3% उसने देना है। लोन लेता हूँ, वो 4% ही बोल रहे हो आप, 1% का गैप है, 4-4.5% पे लोन ले रहे हो। मैंने अकाउंट भी नहीं रखा है, मैंने एफडीज भी डाले हैं, उसके भी इंटरेस्ट आप दे रहे हो। जो रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं उसके भी इंटरेस्ट दे रहे हो आप। अब उसी के एवज में आप बोल रहे हो कि बैंक से कि भाई आप स्टेट बॉन्ड्स और प्रोविंशियल बैंक्स को बोल रहे हो आप प्रोविंशियल बॉन्ड्स निकालो। उसके इंटरेस्ट मार्जिन कहां से देगा जब है ही नहीं बचा कुछ इंटरेस्ट मार्जिन। जब लोगों को भी पता है तो खरीदेगा कौन। अभी जो स्टिमुलस दिया है, एक्स्ट्रा युआन प्रिंट करके डाल दिया उसने, बिकॉज युआन इज, यानी कई लोग कहते हैं कि युआन विल रिप्लेस द डॉलर। आई एम सॉरी, पूरे दुनिया में जो उन रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक इक्विवेलेंट है, कोई युआन में ट्रेड करता नहीं है, क्योंकि युआन इज नॉट ओपन, द वैल्यू ऑफ युआन इज नॉट गिवन बाय ओपन मार्केट, वैल्यू ऑफ युआन इज डिक्टेटेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। तो उसका आपको ट्रेड में मिलेगा नहीं। जैसे मैं 2018 में गया था, तो वहां पे डॉलर को युआन में कन्वर्ट करके यूज किया था, तो 4-5 हजार युआन मेरे पास बच गए थे। यहां आया, कोई बैंक हाथ लगाने को तैयार नहीं है, कहते कोई भी इंटरनेशनल रेट इसका नहीं है फिक्स, तो हम ले नहीं सकते। आई हैड टू गो टू अ प्राइवेट प्लेयर आउटसाइड टू कन्वर्ट दोस युआन इनटू रुपीस टू डिपॉजिट इन माय अकाउंट। ये हालत है युआन की। और लोग कहते हैं भाई साहब युआन विल रिप्लेस द डॉलर, जब भरोसा ही नहीं है किसी को युआन के ऊपर। इसने एक्स्ट्रा युआन प्रिंट कर दिया है, कब तक चलेगा। रियलिटी सेक्टर का तो कोई रिस्पाइट ही नहीं हो रहा है। लाइक यू मेंशन्ड 80 मिलियन खाली पड़े हैं। ये 80 मिलियन जो बन चुके हैं खाली पड़े हैं, जो खाली खाली खड़े हुए हैं टावर्स जिसका अंदर कुछ बना नहीं है, वो अलग है, उसका हिसाब ही नहीं है। दूसरा जो चेंज किया अभी, ये स्टिमुलस वो रोक रहा था। दूसरा जो चेंज किया है कि इंटरनल कंजम्पशन चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट खत्म हो रहे हैं, बट इंटरनल कंजम्पशन के लिए लोगों के पास तो पैसा होना चाहिए, पैसा है ही नहीं। एक बड़ी पते की बात इसके रिपोर्ट में निकली है, जहां पे इस पॉलिट ब्यूरो मीटिंग में डिस्कस हुआ और उन्होंने प्रोविंसेस को कहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स को किडनैप करना बंद करिए। जब खोजा तो पता लगा कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं, उनके मालिक को किडनैप करके रैंसम लेके छोड़ रहे हैं। इन्हें इस लेवल पर 80s 90s में ये इट वाज वेरी कॉमन इन बिहार। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी थी बहुत अच्छा, जिसने देखा नहीं है देखना, फंस गए रे ओबामा। बहुत तगड़ा पिक्चर बना है। उसका यही था कि आप लोगों को किडनैप कर रहे हो और उससे पैसे ले रहे हो और अपनी पार्टी चला रहे हो। ये तो पार्टी क्या, ये तो प्रोविंस चलाने के लिए, क्योंकि प्रोविंस का मैक्सिमम पैसा होता था फ्रॉम रियलिटी सेक्टर। कैसे, और कहीं से तो पैसा था नहीं। जमीन का मालिक देश है। नोबडी इज द ओनर ऑफ लैंड इन चाइना। आपको लीज में मिलता है, आपने लीज में दे दिया, रियल्टी वाला ने बना दिया, 10 साल का लीज था, 10 साल के बाद उसको दोबारा आपके पास आना पड़ेगा लीज लेने के लिए, तो वो पैसे आते थे। अब रियलिटी सेक्टर में तो पैसे ही नहीं बचा।
अब वही हो गई ना बात, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो अब वो छोड़ेगा क्या? लीज लीज के पैसे ही छोड़ो, उसको तो जीने के पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो नाउ दे आर रिसोर्टिंग टू दिस, जो पहले करते थे फाइनेंशियल व्हीकल्स जिसको बोलते थे, लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स, बॉन्ड्स लगा के, LGFVs. वो क्रैश हो गए। अब उसका नाम बदल के अब आप बोल रहे हो प्रोविंशियल बॉन्ड बना दो, टू बी कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल्स। सेम था जो तब पिटा था, अब बॉन्ड्स बोल के क्या मिलेगा आपको? जब Yeah. बैंक के पास पैसे ही नहीं है इंटरेस्ट देने के लिए, तो देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? चलो धक्का मार के जोर पकड़ के आप बोल भी दोगे कि ठीक है आप खरीदो, जब इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तो बैंक कहां से देगा इंटरेस्ट? कहीं से नहीं देगा। अब जब वो मैच्योर हो गया तो मैच्योरिटी के लिए मैं बॉन्ड बेचना चाहूंगा तो कौन खरीदेगा? Yeah. Have they thought about that? I think there are a lot of things they've not thought of, and That's why that heading, can it be controlled? control. Right. The spiral I think. slide. I mean, to be very honest, I think there's a problem in their leadership. I think they're looking at 2-3 different things from 2-3 different angles. As a result, the whole story is completely uncontrolled. Because Xi Jinping has a viewpoint, and the rest of the people seem to have a different viewpoint, and So the they're not person able to that undo it. लीडिंग इकोनॉमिस्ट एक था, उसने उसके अगेंस्ट लिख दिया, वो तो गायब ही हो गया। वो तो गायब हो गया, yeah. Aping or something like that. I remember that. वो तो गायब ही हो गया। Gaib, yeah. यही हालत है सर। Okay, shall we go next? हाँ सर। तो अब यही वो थे बजूका टू बूस्ट इकोनॉमी। अब व्हाई आई लाइक दिस बजूका, भाई बात जब बजूका फायर करते हो ना बैक ब्लास्ट होता है। अभी बैक ब्लास्ट हो रहा है। बैक ब्लास्ट का सोचा ही नहीं आपने। मॉर्टगेज का रेट कट, इसका रेट कट, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में सोचा ही नहीं है। अच्छा, जो बिक रहा था, अब आपने क्या बोल दिया है, ईवी उनके मेकर्स है, एसेंशियली इट इज टू BYD, वही बाहर गया हुआ है कि भारत और टर्की में इन्वेस्ट मत करो। मत जाना। अच्छा, टर्की तो चलो दूसरी बात है, उसकी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। भाई साहब, भारत इज द ओनली मार्केट दैट यू हैव। यूरोप और सबकी मार्केट तो बंद हो गई आपके लिए, यूएस एंड यूरोप की। अब यहाँ आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो भारत ने तो बोल दिया है ऑलरेडी BYD को, आपको बनाना है तो इट हैज टू बी इंडियन, run by Indians, R&D in India, invest in India, make for India and sell out. It will not be made in China coming here. अब वो आप बोल रहे हो, मना कर रहे हो, तो उसकी भी दुकान बंद कर रहे हो। अब आप देख लो जो यूएस में उसको लॉसेस आ रहे हैं। सबसे बड़ा झटका iPhone 16 इज इंडिया, चाइना में नहीं है। अब 16 ऑनवर्ड सारा इंडिया में बन के लॉन्च होने वाला है। Yeah. So Yeah. I have a question. I have a question on BYD. हाँ, यार अभी तो their factory won't be set up here. That's very clear. Because India wants a factory to be set up here, and China doesn't want it to be happen. So BYD will not set up a factory here. What will happen to all those fools who bought BYDs in India? वो तो मरेंगे, तो 5-7 साल तो चल जाएंगे। बिकॉज द वे आई लुक एट इट, द वे दे आर ट्रीटिंग Elon Musk out there, it's just a matter of time before he lands up in India and sets up shop here. India, yeah, he has to. He's got no choice. He has got no choice left, sir. Yeah. Because he was being what the US and the West are doing to BYD, he was doing to Elon Musk to boost up BYD. अब BYD की कहीं सेल नहीं हो रही, इंडिया की एक मार्केट है वहां सेल नहीं है। आईफोन वहां से निकल के आ गया है, आईफोन अब यहां से हो रहा है। सो that is why I say these are knee-jerk reactions, what they are doing to their economic collapse. They're not looking at long term कि हमने क्या क्या करना है to bite the bullet, to change tack, वो नहीं कर पा रहे हैं। और okay, बेसिक पॉइंट ये है सर
हिंदी में जो कहावत है, अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने तो जिस खाने में थाली में खाते थे उसी में छेद कर दिया। आपका एक्सपोर्ट यूएस और वेस्ट के साथ था, उसी को आंख दिखाने लग गए, और नाउ यू आर पेइंग द पेनल्टी फॉर इट। नाउ हाउ डू यू रीगेन द ट्रस्ट? द ओनली वे इज टू बूट आउट Xi Jinping. The whole hierarchical structure has to change and somebody has to come. Will the rest of the world trust even the CPC? I have my doubts. तो जब तक वो स्ट्रक्चर वहां का चेंज नहीं होता, भरोसा दोबारा लाना बड़ा मुश्किल। और बीआरआई का तो जो उसका खासम खास कंबोडिया है, उससे ही छोड़ के चले गए, पैसे नहीं है। सीपेक के हालत, that canal is in a problem, कैनाल वो तो छोड़ के चले गए सर, पैसे नहीं है। Everywhere they have gone back that they have no money, which tells you the major problem that they have. And BRI, they had put it with so much of fanfare. 2018 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया था, मार्च 2018, that is the vehicle for the economic growth of China. तो BRI कोलैप्स हो गया, तो that tells you पैनिक स्टेशन आ रहा है। It is like a swimmer having a or man in water having panic stations when he doesn't know how to swim. Yeah. नहीं आता, डीप एंड में चले गए हो, कोई सहारा नहीं है, आप क्या कर रहे हो, छटपटा रहे हो। Yeah, I think that's why I must tell you. I said, yeah, when I chose this heading, panic stations, I started searching. Where can I get an equivalent thing? Then I saw this dragon. मरा हुआ ड्रैगन। तो अभी भी ड्रैगन बोल रहे हो, हम तो सूखे छिपकली बोल रहे हो, तो ड्रैगन वो बात अभी वो लगता तो छिपकली है ना, I mean, let me show it. Why did I say panic stations? I'll get back to this. Sorry, पीछे, yeah. You see, look at it, वो तो छिपकली लग रहा है, ये देखो छिपकली है और वो उसको पसीना आ रहा है। The moment I hit this, I said, यार ऐसे ये होना चाहिए, because they are actually in panic. That's what I can make. Go to the next ones. Yeah. Unemployment का तो very clear है, they have no idea what to do. पिछले साल जुलाई से उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स देने बंद कर दिए। काफी शोर शराबा पिछले साल हो चुका था, चाइना में भी, हांगकांग में भी, बाकी देशों में भी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट, एक बंदे के पास अगर 2 घंटे का काम है पूरे हफ्ते में, तो ही इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। यस, दैट इज रिडिकुलस। नेक्स्ट, लोगों के पास कंपनियों में, स्टेट रन कंपनीज आल्सो, दे डोंट हैव मनी। तो अगर आप 45 के ऊपर जा रहे हो तो यू आर वेरी स्केर्ड कब आपको पिंक स्लिप मिल जाएगा, क्योंकि आपका पे स्केल बढ़ गया है, वो देने के पास, और अलावेंसेस भी बढ़ गए हैं, तो कॉस्ट टू कंपनी बहुत हाई हो रहा था, तो वो आपको पिंक स्लिप देके नए ग्रेजुएट को अंदर लेते हैं ताकि वो बॉटम ऑफ द स्केल में रहेगा, तो मेरे पैसे खर्च नहीं होंगे। इज दैट हाउ यू रन? जॉब मार्केट सिंक हो गया है भाई साहब। सिक्योरिटी गार्ड के लिए पीएचडीज आते हैं, वो हमारे यहाँ भी हैं, वो तो बिहार वाले आते हैं, और वो पीएचडी कहाँ से किस तरह से किया है वो हमें भी पता है। देन इनके अर्बनाइजेशन प्लान खत्म हो रहा है, जो मैंने कहा था रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, they're going to the rural areas. अर्बन से रूरल जा रहे हैं कि खेतों में काम करके कम से कम एक दिन में एक बार कुछ तो खाने को मिलेगा। यहां तो कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने पैसे बचाने के लिए क्या कर दिया, बोला रिटायरमेंट हम डिले कर देंगे, कि 5 साल तक कोई रिटायर नहीं होगा। 5 साल तक कोई रिटायर नहीं होगा, बट दैट डजंट मीन कि पिंक स्लिप नहीं मिलेगा। और जो प्री स्कूल्स हैं, जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, इंडिकेटर है, जितने इनके काफी सारे हजारों में प्री स्कूल्स और जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो सब बंद हो गए हैं। अब वो दिस इज बिकमिंग अ नर्सिंग होम फॉर द एल्डरली। Now that tells you exactly what has happened to them. Yeah. Hey, which is why a number of places I say the death of the dream even before they could achieve it.
They become not old only that, even before anything they could do. not only And that, other, the thing about unemployment, what you said, देखो, like you said, last year their unemployment was at a figure of I think 20 odd % when they stopped publishing. stop. When they republished the thing, they got it down to some 8 or 9%. तो मजे की बात यह है कि it has now gone back to 18%, which means from 21% it came down to 9% and it's gone up to 18%. So you actually add this 9% to that original 21%. So unemployment in China is running at 30% plus. And if you take the thing, आपने जो बोला है कि 2 घंटा काम कर लिया तो is employed. So, right, that means the situation is even worse actually. plus And then the you fact compound it. which I was telling a minute, I would say, take yours, sir. Yeah, How they're saying this? एक तो वो 2 घंटे वाला है, दूसरा 45 to 50 years को पिंक स्लिप दे दिया, जो नया आया उसको एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. बट दे नॉट काउंटिंग कि जो 45 to 50 एज गैप में वो अनएम्प्लॉयड है, ही इज नोवेयर इन द काउंटिंग. he's nowhere in the count. Yeah, he's gone home. And not only that, this business of and increasing the retirement ages, they say they've increased the retirement age because they can't afford pension. इसमें भी 2 फ्रॉड है. एक फ्रॉड ये है कि आप 55 इयर्स इंक्रीज कर दो रिटायरमेंट एज, फिर तो नीचे नौकरी नहीं खुलेगा ना. एक तो ये है, नौकरी नहीं खुलेगा. सो अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली डजंट हेल्प अनएम्प्लॉयमेंट. Right. In any case, you're not giving them the pension bill because at 45 you already sacked him. ये कोई पता नहीं वो पीसी सरकार टाइप चला रहे हैं. Illusion. मायाजाल है ये सब कुछ. I mean, at times, I'm astounded how things are happening in China. And the closing of preschool is a big indicator that 20 years down the line, this workforce is not there. Not there. Yeah. Can we go next? Yeah. This is the one which we had done earlier, hitting economic birth. And ये जो इनको पहले यहाँ पे आना था 2070 में, they've already, not just 20, 30, 40, they've already reached it, crossed it. They've already reached it. Here. हो चुका है already इनका problem area. And that is the big problem area they are facing. And 10, 20 years down the line, it is going to hit the PLA very badly. They will not have people, conscripts के लिए बंदे नहीं होंगे. Because if this 20 years down the line, बंदे नहीं हैं, तो how do you get your conscripts? You don't have. Completely. They and don't the have. youth is so demoralized. So initially होता था टांग पिंग हमारे सोशलिस्ट और जो यूनियन वाले हैं वो समझेंगे वर्क टू रूल, मतलब 9 to 5 जो मेरा काम है मैं वही करूंगा. दाएं बाएं वाला काम आप मेरे को दोगे, मैं कुछ नहीं करूंगा. 9 बजे आऊंगा, 5 बजे चला जाऊंगा. उनका वर्क टू रूल होता था. वहां से आ गया बाईलान, लेट इट रॉट. आऊंगा, बैठूंगा, काम ही नहीं करूंगा. नॉट इंटरेस्टेड. अब हो गया रुनशुए, run away from PRC. And the report that Nikkei and other financial times, I think they are running, Economic Times also, their billionaires and millionaires are running away. In this year, abhi tak more close to about 16,000 millionaires and billionaires have run away. And from 2015, they have all been parking their money either in Singapore, Australia, or the US. And most of them are running away to Singapore and then onwards to US. पिछले साल भी आया था जो यूएस में मेक्सिकन बॉर्डर से इतने इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे थे. बल्क ऑफ द इलीगल माइग्रेंट्स वर चाइनीज. Yes, I agree completely. They are running away, literally running away. जिसके साथ जो भाग सकता है वो भागने की कोशिश कर रहा है. They're just not interested in staying on. And now that is... And not only that, the migrants, illegal migrants through the Mexican border is at its peak.
peak. It's never, historically, there's never been so much migration from China into USA through the Mexican border. That gives you a large indication of where the Chinese people are going. इसलिए जो भाग सकता है वो भाग रहा है, जो फंस गया वो फंस गया. वो वही बात है, फंस गया ओबामा टाइप. वो जो फंस गया है वो ईस्टर्न सीबोर्ड से वेस्ट की तरफ भाग रहा है. यहाँ रहूंगा, फंसूंगा, गांव में चला जाता हूँ, कम से कम पकड़ने आएंगे तो जंगलों में छुपने के लिए जगह है, यहाँ तो कहीं नहीं छुप सकते, सब तरफ सर्वेलेंस है. और my gut feeling is जो कहीं भाग नहीं सकता ना, वो जी जिनपिंग उसको पकड़ के वो जियाकोंग विलेजेस में भेज रहे तिब्बत में. वो वहां से, I mean, the day is not far, वहां जियाकोंग विलेजेस से they'll really migrate towards India also. Illegal migration शुरू हो जाएगा, racket. Anyway, that's a different story. We'll talk of it. So, bumbling PLA, and I say it continuum since the tongue shopping era. Why? Tongue shopping ने 1985 में बोला था PLA का 2 inabilities, that they cannot fight modern wars and they have insufficient officers. तब अफसर कार्डर उतने आते नहीं. Who 2006 में बोला था 2 incompatibles, that they cannot win informatized local wars and they are not capable to execute missions. These are very big statements कि मिशन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. शी जिनपिंग लेते ही 2013 में 2 गैप बताया कि मॉडर्नाइजेशन लेवल्स एंड नीड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी, ये गैप है, ये पीएलए में नहीं है. 2014 में कहता है 3 वेदर दे पार्टी कैन मेंटेन होल्ड. तब से शक है इसको पीएलए में कि पार्टी के कंट्रोल में नहीं है. एंड विन वॉर्स, कैन दे विन वॉर्स, तब भी शक था. कैन कमांडर्स लीड इन वॉर, एंड दैट लेड टू 2015 जो टिल डेट है 5 कैनॉट्स. He says the commanders cannot judge a situation, cannot pass orders, cannot deploy troops, cannot judge fleeting opportunities, and cannot understand higher commanders' orders. Hello, तो ये लीडर कैसे बना, ऑफिसर कैसे बना? ये तो ऑफिसर का चार्टर है यार. तो ऑफिसर बना कैसे ये? एंड यू आर टेलिंग नीचे से लेके ऊपर तक सब ये प्रॉब्लम है. तो भाई साहब किस खेत की मूली है ये? फौज में आए हो तो ये तो करना है. यू हैव टू जज ए सिचुएशन, ऑर्डर्स पास करने, ये तो बेसिक आपको सिखलाया जाता है. हाउ टू जज, हाउ टू पास ऑर्डर्स, हाउ टू डिप्लॉय योर ट्रूप्स. लड़ाई के लिए हर चीज का डिप्लॉयमेंट के लिए बताते हैं कि एलएमजी कैसे, एनएमजी कैसे, हर चीज कैसे, सारा डिप्लॉयमेंट कैसे होता है. फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटीज आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, सही एक्सरसाइज करते हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज अ फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन टेक. अब इतने सारे एक्सरसाइज, एनुअल एक्सरसाइज, सब जितने उनके ट्रूप्स हैं एनुअली, एवरीबडी इज एक्सरसाइज. डिस्पाइट दैट यू से ही कांट डू इट. और हायर कमांडर के इंटेंट ही नहीं समझ सकता. क्यों? कैसे समझेगा? हायर कमांडर का इंटेंट समझने के लिए एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड, जिसमें ऑर्डर्स नहीं इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं. वेयर द हायर कमांडर सेज ये मेरा इरादा है, ऐसे करना है. उसके अंदर you decide how you're going to fight and how you're going to achieve his intent. लेकिन थ्रूआउट आपका पीएलए जब से बना है, यू हैव ऑटोक्रेटिक कंट्रोल कि मैं बताऊंगा तुमने क्या करना है, कैसे करना है. मजाल आप कोई चेंज कर दो, उसके बाद ये रो के क्या फायदा. ये करने के बाद भी आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल से कमांड करते हो, जो आपके विरुद्ध जाता है उसको सैक कर देते हो. तो हाउ विल ही अंडरस्टैंड योर इंटेंशन? उसको तो पता ही नहीं है इंटेंशन आपका. क्यों? क्योंकि आपको खुद को नहीं पता आप करना क्या चाहते हो. जब आपको खुद ही नहीं पता क्या करना है तो बेचारा वो नीचे क्या समझेगा. और इसका बिगेस्ट धक्का क्या हो रहा है? सिंगल चाइल्ड पॉलिसी. वो मरना नहीं चाहता कॉन्स्क्रिप्ट, क्योंकि उसके सर पे 2 फादर हैं और 2 पेरेंट्स हैं और 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं. अगर शादी हो गई है तो 2 और इन-लॉज हैं और उनके इन-लॉ ग्रैंड पेरेंट्स हैं. इतने बंदों को उसका ख्याल रखना है. मर गया तो कौन ख्याल रखेगा? देन conscript and contract soldiers cannot win you wars. Volunteer soldiers well trained जो आए हैं वॉलंटियर होके, conscript और contract
इसका सामना नहीं कर सकते। क्लियर इमर्ज होके आ रहा है कि जब शुरू में रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ था, रशिया हैड आउटसोर्स्ड इट टू वागनर टिल दे डिडंट टेक कंट्रोल, भागते थे लोग वहां से। अब यही प्रॉब्लम यूक्रेन को फेस हो रहा है। उनके पास कॉन्स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर्स, कॉन्स्क्रिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर मरने नहीं आए, वो किसी और मर्जी कारण आए हैं, वो मरना नहीं चाहता तो वो तो भागेगा। ठीक है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत आ रहे हैं, सब लिखते हैं हो सेकंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। ट्रेन्ड सोल्जर्स कहाँ है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर? Have your people absorbed that technology? Do you have a trainer to train on that platform? तो ये प्लेटफॉर्म लेके क्या करोगे जब आपके पास ट्रेंड सोल्जर नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए? और नंबर 2, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर के एफिकेसी के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म ही क्वेश्चन मार्क है। जब आपके न्यूक्लियर सब लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट आप बोलते हो वो सिंक हो जाते हैं, तो देन पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग ना कि भाई क्या है। अब लाइक आई सेड, ऑटोक्रेटिक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, ऊपर से कापो दी टूटी कापी का हुक्म आ गया है, आप हुक्म बदली कर नहीं सकते। आपको पता है कि जो इंस्ट्रक्शन मिला है गलत है, आप कह भी नहीं सकते ये गलत है, और आप अपने मर्जी का कर भी नहीं सकते। आप कहोगे तो मरोगे, करोगे तो मरोगे। दैट इज हाउ इट हैज कम टू लेट इट रॉट और रन अवे। एंड परजिस धड़ाधड़ हो रहे हैं। पहले भी मैंने कहा था, पर सीनियर ऑफिसर का होता है तो एक इकलौता सीनियर ऑफिसर नहीं होता है, उसके साथ उसका पर्सनल स्टाफ होता है, उसके हैंडपिक स्टाफ होता है जो उस साथ लेके आया है, मेरे स्टाफ हेडक्वार्टर में रहेगा, ये सारे पर्ज होते हैं। इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि इज द पीएलए रेडी? मेरे को लगता नहीं है पीएलए इज रेडी, क्योंकि पिछले साल नवंबर में भी उन्होंने पीएलए डेली में छाप दिया था op-ed में, the PLA is not yet ready for war. Is this the reason now suddenly he's been pushed to a corner and he's asked, holding out a hand to India कि भैया कर लो कुछ सुलह? बट अगर ये हम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ देख रहे हैं इज एग्रेशन इन दी ऑन द ईस्टर्न सी, बोथ साउथ चाइना सी, ताइवान, जापान, सबके साथ। तो हमारे साथ सुलह करने का क्या कि भाई एक फ्रंट को मैं किसी तरह मैनेज कर लूं और एक ही फ्रंट रहे मेरे लिए। मुझे लगता है ये है, आपके साथ सुलह करने के लिए नहीं है, कि आपको गुमराह करने के लिए है कि यार आपसे सुलह करना चाहता है लेकिन वहां है। लेकिन जयशंकर जी ने तो ओपनली कह दिया, जब उनसे पूछा था कि भाई, उनके फॉरेन मिनिस्टर वांगी ने कह दिया था कि भाई 4 पॉइंट पे हमने पुल आउट कर लिया है, इंक्लूडिंग गलवान, मतलब पीएलए ने पुल आउट किया। हमारे यहाँ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये हमने कह दिया है कि भाई हम तो पुल आउट नहीं करते, भरोसा नहीं है उनको। दैट्स अ टेलिंग स्टेटमेंट। तो पीएलए तो बम्बलिंग करता रहेगा। इन्हें आप जो जिस आदमी को तैरना नहीं आता उसको डीप एंड में फेंक दो बगैर सपोर्ट के, तो वो क्या करेगा? टंग शाओपिंग, जियांग जेमिन, हु जिनटाओ उनको धीरे धीरे शैलो एंड से तैरना सिखाते सिखाते लेके आ रहे थे। जैसे जो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड करके बना दिया है, ब्रिगेड बैटल ग्रुप्स, इसका प्रैक्टिस तो 2006 से शुरू हो चुका था। क्या स्ट्रक्चर होना है, एक्सरसाइजेस में लाते थे, ब्रिगेड बैटल ग्रुप, बटालियन बैटल ग्रुप, करते 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 2011 तक ये थोड़ा सेट हुआ था और धीरे धीरे कन्वर्ट करना शुरू किया था। इसने तो आओ देखा ना ताओ सबको कन्वर्ट कर दिया। एंड सेंट्रली सारा कुछ कर रहा है। एसएसएफ बना था उसको तोड़ दिया, पीएलए सबको पर्च कर दिया, रॉकेट फोर्स को। अब रॉकेट फोर्स में रॉकेट फायर किया तो पीएलए नेवी का एक सबमरीन डूब गया। उसमें कितने लोग मरे हैं? पहले भी गलवान में लोग काफी इसके पीछे पड़ गए थे, उनके काफी कैजुअलिटीज हुए थे जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। 4-5 को ही अभी तक रिकॉग्नाइज किया, अभी भी नाराज है लोग। पिछले साल एक सबमरीन डूब गया था जिसमें 51 लोग मरे थे, उनको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। ये सबमरीन भी डूब गया, इसमें कितने मरे हमें पता ही नहीं है, मरे नहीं मरे पता ही नहीं है।
इज दैट हाउ यू पीएलए नाराज क्यों नहीं रहेगा सीपीसी से? अगर सीपीसी चाहता है कि पीएलए उनके साथ रहे, तो अगर पीएलए का कोई मार्टिर होता है या मर जाता है, आपके लिए काम करते हुए मर जाता है, तो कम से कम सीपीसी को तो रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये मरा है मेरे लिए। उनके एनओके को कुछ बताना चाहिए, कुछ देना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं। एंड देन यू एक्सपेक्ट कि पीएलए आप पे भरोसा करेगा। तो पीएलए का तो अभी ये है कि भाई किसके साथ रहेगा, क्या करेगा, कौन है जो पीएलए को कंट्रोल करेगा, या पीएलए इनको कंट्रोल करेगा, क्या होगा? पीएलए दूसरे से लड़ नहीं सकता, अंदर वाले लोगों के साथ तो फर्स्ट क्लास लड़ सकता है, जैसे उसका चम्मच भी करता है पाकिस्तान आर्मी। बाकियों से तो लड़ने में तो पिट पुटा के आ जाता है और बोलता है कि हम जीत गए, लेकिन अपने देशवासियों को साथ तो अच्छे से कुटाई करने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरी तरफ से गोली नहीं चलती ना। जब अब जैसे देख लो आप, केपी और बलूचिस्तान में गोली चलने लगी तो उसको समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। तो अभी चाइना में लोगों के पास हथियार है नहीं, लेकिन अगर हथियार आ गए तो फिर पीएलए क्या करेगा? जब रेवोल्यूशन आता है वो बता के नहीं आता, बता के दिया। and revolutions, finish off states as they happen. So my view is, slowly he's edging to a revolution. And China, if you look at the history of China, China has had revolutions and revolutions and revolutions every 100 to 200 years. So regime change has been through revolution. Revolutions. Actually, it's a serious question. Is China hitting the revolution threshold? उसको मेरे हिसाब से उसी को डिले करने के लिए इसके विंग्स क्लिप किए हैं। दैट इज, यू लुक एट द डिसीजंस थर्ड प्लेनम and look at this Politburo meeting, which was supposed to be political, went economic, and they've gone against whatever he wanted. Actually, it's not only third plenum. You look at it from the 20-party Congress, the NPC. Then you plot each of this, plot and all you that, see, and then plot you all see that, the change in the thing, and then you see, and the fact that this demographic decline has taken place, and property we've been talking now ever since you and I started this story. We've been talking of properties, right? And everyone's saying, "No, yeah, property hai to kya hua? China will pull out. China can pull out of everything except itself." That's the way it is. One of their writers, economists, he had said they need 1.5. This is not enough, he has said. Immediate they require 1.5 trillion US dollars. Trillion, yeah. 1.5 trillion to that. Where will you get it from? Right? And of course, the pity is there's so many people who believe that China's economy is strong and it is going to rule the world and all that. Anyway, yes, well, it's up to them. We can't, but let's put across our point of view, which is based on their facts. Yes. So, an average PLA, it's an average PLA. क्यों? Centralized autocratic decision making. जब आप बोलते हो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, दैट इज इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर, वो जो लैंग्वेज वगैरह सुनता है, बेसिकली नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आस्क्स फॉर a decentralized command and control decision making, which is a directive style of command. Autocratic decision making, you cannot fight future wars. You are fighting the first and second generation warfare. फ्यूचर वॉर आप लड़ नहीं रहे। तो आप जितना बोल दो मैं एआई ला रहा हूं, मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं, बेचारा वो एआई को इस्तेमाल करने के लिए शी जिनपिंग का हुक्म का वेट करेगा। उस एआई का क्या करेगा? अचार डालेगा। अगर शी जिनपिंग ने हुक्म नहीं दिया, वो सो रहे हैं या कहीं और व्यस्त हैं, तो डिसीजन गया और वो अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला था वो निकल गया। 5 कैनॉट्स का मैंने बता ही दिया। इक्विपमेंट क्वेश्चनेबल है, मैन पावर इल ट्रेंड है, conscripts and contract versus volunteer,
एंड प्रॉब्लम ये है, व्हाई आई एम सेइंग इल ट्रेन्ड एंड पुअर, ये जो पुअर लीडरशिप है, लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉयल्टी एंड फियल्टी टू लीडर इन सीपीसी, योर मेरिट डजंट काउंट। अब जब ओवर द इयर्स जब इन्हीं लोगों को आप लेके आओगे तो इट लीड्स टू व्हाट वी कॉल इज मीडियोक्रेसी, दैट इज मीडियोकर ऑफिसर, एवरेज बिलो एवरेज ऑफिसर आएगा। तो अगर एवरेज बिलो एवरेज ऑफिसर को आप उठा के लेते आ रहे हो इतने साल बाद, तो ये लीडरशिप पुअर तो होना ही है। Yeah. And I like to just highlight to everyone, I'll take the slide off and we'll come face to face and I like to highlight. Just before we started this video, we were discussing, both of us, we worked at a fairly high level in army headquarters. We used to have interactions with the chief and our deputy chief and higher ups. And one of the things which in the Indian Army, which we were always proud of, was the ability to tell our senior, sir, you're wrong. And I think this is why you are wrong. You may like to course correct and put across all facts. And after listening to all facts, if he did say, this is my order, we used to take it. But we never had the, what shall I say? We always were allowed to put the facts up. We were always, never put down from putting our facts up. And most importantly, it's been my experience. I'd like you to share that also, yours. When we gave this against our seniors, or I wouldn't say against our seniors, but a different opinion, invariably the seniors saw sense. And I have never been able to, I've never had an experience where the senior didn't change his mind based on your thinking or your advice or your analysis. I think this is a very important factor which differentiates good leaders and bad leaders. China is an example of bad military leaders, and India is an example of good military leaders, and I'm proud of it. I want your views on this before we get back to China, Rajiv. Yes, I think this is a thing right, which people need to understand this. right through we are taught the military decision making process, wherein when a problem is given to a unit or a sub unit, it is the duty of the principal staff officer to get all the details together and brief the commander that this is what has come, these are the details, and give his recommendations. Now a discussion has started. The commander there or his deputy along with him, they may present something else. If the staff officer feels no, something is not right in that, he is well within his right in the military decision making process to counter that, and not just counter for countering's sake, counter With that logic. with facts and say that, give his logic and analysis why he feels it is wrong. After that comes the directions, and more often than not, it is not necessary because of the commander having been through all this process. He might be able to guide you and tell you कि भाई साहब आपने ये पॉइंट तो बहुत सही बताया, अच्छा किया, लेकिन इन पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया, और ये पॉइंट से ये रीजन है, ये पॉइंट आपने सही बताया, तो मैं अपना डिसीजन मॉडिफाई करके ऐसे डाल रहा हूं. नाउ दैट इज ए लर्निंग प्रोसेस टू द स्टाफ ऑफिसर कि मैंने 5 पॉइंट तो बता दिए थे, लेकिन ये 3 क्रिटिकल पॉइंट जो कमांडर ने बताया मेरे को, वो मैं भूल गया था. अब वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि भाई साहब ये 5 के साथ इस 3 का भी ध्यान रखना चाहिए. इस तरह के सिचुएशन में, हर सिचुएशन में नहीं, इस तरह के सिचुएशन में. तो दैट इज द मिलिट्री डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. वो मेरे को दिखता नहीं है पीएलए में. Yeah, that's the thing. You see, leadership is 80% of winning a battle is leadership. The rest, everything else comes later. अगर आपका लीडरशिप ही पुअर है तो लड़ाई कैसे जीतने वाले हो आप? Yeah. अब देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट का रिवाज है कि दे ऑलवेज टारगेट द कैप्टन. तो बोलते हैं कि ऑपोजिशन के कैप्टन को आउट कर दो, या उसको कैच आउट कर दो, रन आउट कर दो, या उसको अगर वो बॉलर है तो उसको छक्का मारो, उसका मनोबल को तोड़ दो, तो देन यू विल विन. एंड इन दिस केस शी जिनपिंग उसका खुद के लीडर्स का मनोबल को तोड़ रहा है. दैट्स द पॉइंट.
सिंपल चीज है, अगर वो बोलता है कि चलो LAC पे मैंने अटैक करना है, बटालियन कमांडर आता है, इंस्ट्रक्शन क्या देगा अपने ट्रूप्स को, डिप्लॉय कैसे करेगा, कौन कहाँ पे हमला करने वाला है, अगर कोई फ्लीटिंग अपॉर्चुनिटी मिली इस हमला करते वक्त कि उसको जल्दी से कब्जा कर लो, नहीं है तो कैसे करेगा, कहां से करेगा? Yeah, that's the thing. Okay. तो अभी क्वाड, अभी आई वोंट से क्वाड हैज बिकम स्ट्रांग, बट दिन ब दिन स्ट्रांग होते जा रहा है और वो चाइना के डोर स्टेप पे आ गया। क्या PLA रिस्पॉन्ड करेगा? क्या उसने सोचा था ये होगा? अब क्वाड ने बोला है जॉइंट पेट्रोल होगा इंडो पैसिफिक में, जो इलीगल फिशिंग चाइना कर रहा है उसको चाइनीज शिप्स को पकड़ेगा। ठीक है, अब इलीगल फिशिंग इंडो पैसिफिक में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ अफ्रीका एंड गोज राइट अप टू वेस्टर्न पैसिफिक। ये इंडोनेशिया के पास भी आ रहा है। इंडिया हैज एग्रीड टू ज्वाइन। क्या करेगा? एंड दे हैव ऑल एग्रीड टू आर्म्ड पेट्रोल्स। अब ये तो लिटरल मसल फ्लेक्सिंग हो गया ना आपके इलीगल फिशिंग जो भी, क्योंकि हमारे पास एक, लोगों को पता नहीं है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का एक फ्यूजन सेंटर है इन गुड़गांव, जिसमें और एक इनका वेस्टर्न पैसिफिक में भी था, दोनों अभी फ्यूज हो गए हैं। पूरे इंडो पैसिफिक का जो शिपिंग चल रहा है, हर एक का मिनट टू मिनट ट्रैक अवेलेबल होता है, कौन से शिप कहाँ जा रहे हैं। कोई नया शिप निकल के आता है, सैटेलाइट जो पकड़ता है, पता लग जाता है ब्लैक है तो ये इलीगल है, छुपा रहा है। अब चीन कई दफा अपने शिप्स को छुपा के ले जाता है, वो छुपा नहीं सकता, फंसेगा, क्योंकि ये आर्म्ड पेट्रोल हो रहे हैं। अब आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग फर्दर। अपने खुद के PLA के शिप्स को, PLA नेवी के शिप्स को ब्लैक निकालता। इलीगल फिशेस तो हैं ही ब्लैक, उनको मदद करने के लिए उसके मैरीटाइम मिलिशिया जाते हैं, वो ब्लैक हैं। कई दफा उसके कोस्ट गार्ड वाले जो नीचे आ जाते हैं नटूना सी के पास, वो भी ब्लैक होते हैं इंडोनेशिया के पास। अब ये सब आर्म्ड पेट्रोल तो पकड़ने लगेंगे, तो व्हाट इज द रूल ऑफ एंगेजमेंट दैट PLA विल टेल टू देयर पीपल? फायर खोलने की हिम्मत है? फायर खोल दिया तो लड़ाई, लड़ने के लिए तैयार है। और वही मैंने बोला, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। पैसिफिक ओशन पहली बार 1980 के बाद पहली बार इसने पैसिफिक ओशन क्लेम करता है, साउथ पैसिफिक आइलैंड के पास गिरा है। पता नहीं कौन सा मिसाइल फायर किया था, सम से DF-41 का नया था या DF-31 वाला नया था, पता नहीं, बट वो किया और उसका नया सबमरीन सिंक हो गया डॉक में। अब वो सोचने वाली बात है, वुहान तो यांगसे रिवर में है, न्यूक्लियर सब वुहान के पास क्या कर रहा था? वुहान के पास वो वुशचांग ऐसी कुछ नाम है उस डॉक का, जहां पे सिंक, तो यांगसे नदी में क्या कर रहा था? और उसमें न्यूक्लियर फूल था नहीं था? ये पूरे यांगसे नदी में कितने मिलियंस पीपल रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं इनके, उनके जान के साथ खेल रहे हो। न्यूक्लियर लीक हो रहा है क्या पानी के अंदर? इज द वाटर बिकमिंग अनयूजेबल? And this was the latest submarine, state of art, Yeah. type State of art. 96, type 96 जो सिंक हो गया। एक बड़ा टॉम टॉम करके दिखाया था कि मैंने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एट द सेम टाइम। वो जो तीसरा वाला है वो तो अभी ट्रायल्स कर रहा है, दैट इज नॉट एट सी। 2 को सी में डाला था, यस, 4-5 बैटल ग्रुप के साथ उसने निकाला था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहाँ है वो? Refit. एक साउथ चाइना सी में था, एक ताइवान के दूसरे तरफ था। उसके बाद क्या है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, हर बार जब ये जाते हैं उसके बाद सीधे डॉक में जाते हैं रिपेयर के लिए। ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि सेल करते ही साथ आप रिपेयर के लिए जाते हो डॉक में? चलो डॉक में खड़ा होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि बर्थ में आ गया, अभी शिप गया नहीं है, बर्थ पे आ गया, बट टू गो इनटू ड्राई डॉक एंड गेट इनटू रिपेयर,
अगर वो हालत है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो आप ब्लू वाटर नेवी कैसे हो गए यार? हर 1-2 हफ्ते के लिए बाहर जाते हो और आप ड्राई डॉक में आ जाते हो मेंटेनेंस के लिए। इतना कौन मेंटेनेंस करता है आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स का? इससे कैन ही रेस्पॉन्ड? क्या इसने एनवेलप ज्यादा ही धक्का दे दिया है? जो अपने गॉड ब्लेस हिज सोल बिपिन रावत कहते थे ना, सलामी स्लाइसिंग, हम सलामी कहते थे सलामी खुद का कर रहा है ये। हाँ, पुशिंग द एनवेलप। कहीं एनवेलप इतना तो नहीं हो गया कि खुद का सलामी स्लाइस हो गया? सलामी स्लाइसिंग हो गया, दैट्स या। जो सलाम था, मैंने कहा जो पैनिक स्टेशंस 3-4 पॉइंट थे, आपको दोबारा बता दूं। थर्ड प्लेनम वर्सेस पॉलिट ब्यूरो मीटिंग, जिन शंकर साहब ने भी कहा था थर्ड प्लेनम नहीं, आप 20th कांग्रेस से देखो, एनपीसी देखो, थर्ड प्लेनम देखो, सबका एक लाइन था पॉलिट ब्यूरो मीटिंग में, सारा किस तरह इकोनॉमी को करना, वो टैक ही चेंज हो गया। अब शिफ्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट टू इंटरनल कंजम्पशन, इज इट फीजिबल जब लोगों के पास पैसे नहीं है? जब इंटरनल कंजम्पशन को स्ट्रेस देना था, आप एक्सपोर्ट पे लगे रहे। जब एक्सपोर्ट बंद हो गया, पैसे नहीं है, तो बोलते हो इंटरनल कंजम्पशन। एक बार तो इनके वान हुनिंग ने 1-2 महीने पहले भी कहा था कि भाई इंटरनल कंजम्पशन में जरूरत पड़ी तो लोगों को पैसे भी तो दे दो। अब पैसे कहां से दोगे? बैंक्स, रियल्टी सेक्टर, एक्सपोर्ट्स, डेमोग्राफी सब कोलैप्स हो रहा है, बीआरआई कोलैप्स हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। जो यूथ है वो बहुत रेस्टिव है, जो भाग सकते हैं भाग रहे हैं, बाकी रूरल जा रहे हैं, नहीं तो कुछ करने टोटली डिमोरलाइज घूम रहे हैं। इनर पार्टी स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग हाँ आता है 15-20 मिनट आधा घंटा बैठता है कहीं, बट उसके सारे डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। इसमें मेरे लिहाज से गैंग ऑफ 4 कंट्रोल कर रहा है। काइची है जो उसका पर्सनल फैक्टोटम रहा है फ्रॉम द टाइम जेजांग टाइम से, उसी के साथ चलता आ रहा है, और वो पार्टी के जनरल ऑफिस का सेक्रेटरी है जो कोऑर्डिनेट करता है पूरे पार्टी का काम। उसके नेक्स्ट है वान हुनिंग, द ग्रेट सर्वाइवर, जो चैंग ज़ेमिन, हु जिनटाओ, चैंग इसके साथ शी जिनपिंग के साथ भी चल रहा है। तीसरा इसका प्रीमियर जो लेके आया था ली चियांग, जो उसको कुछ नहीं आता इकोनॉमी, उसके अगेंस्ट भी इतने सारे आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स में भी आ चुके हैं कि भाई झूठ बोलता ही है। और चौथी है इसकी वाइफ पेंग लियुआन। अब ये उसी तरह से गैंग ऑफ 4 चल रहा है जो माओ के टाइम में 72 to 76 में हुआ था, उसके फोर्थ वाइफ और ये 3 थे। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ इनर पार्टी स्ट्रगल्स। विल द अदर्स एक्सेप्ट ऑल दिस नॉनसेंस? बट क्वेश्चन है, इफ नॉट शी हु? अगर शी जिनपिंग नहीं तो Yeah, especially about that Peng Liyuan, his wife. She started interfering or rather having a say in posting of officers also and promotion of officers. That's absolutely copying what Mao Zedong's wife was doing. Right, sir. And so PLA is questionable. More and more उसका आइसोलेशन हो रहा है। जैसे आपने ओपनिंग में कहा था कि वेस्ट एशिया में जो कुछ था वो तो खत्म ही हो गया। अभी वेस्ट एशिया में कोई इसके बारे में, चीन के बारे में बात भी नहीं करता। यूक्रेन रशिया के लड़ाई में भी जितना लोगों को भारत पे भरोसा है, चीन पे किसी को भरोसा भी नहीं है। China burnt their fingers and Xi Jinping because they supported Hamas and Iran and others. अब वो पासा उल्टा पड़ गया, उनको भरोसा कौन करेगा उनके ऊपर? तो ऑब्वियसली अब पैनिक स्टेशन आएगा, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं करेगा, सीपीसी विल लूज पावर इन चाइना, एंड सीपीसी वुड नॉट लाइक टू लूज पावर इन चाइना. There's a problem there, and that problem is very unless they're able to manage. अब हमारे लिए लेसन्स क्या है भाई? लोग कहते हैं लेट्स बी द न्यू चाइना. आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी द न्यू चाइना. लेट अस बी अ न्यू राइजिंग भारत, राइजिंग इंडिया. हम अपने तरीके से राइज करेंगे, हमें चाइना को कॉपी करने की जरूरत नहीं है. जैसे कई लोग कहते हैं लेट अस गो फॉर चाइना +1. सॉरी, चाइना +1 तो वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया गया था, वो तो वहां पे डंप करके उनके कंपनियों को खत्म कर दिया. तो वी शुड लुक एट भारत +1.
कोई कहता है जो उसके पास ओवर कैपेसिटी है वो ले लो। अरे यार, उस ओवर कैपेसिटी का मार्केट नहीं था, इसीलिए तो इसका इकोनॉमी कोलैप्स हुआ है। उस ओवर कैपेसिटी को लेके मैं क्या करूंगा? हमें बोलना चाहिए कि जो भी एमएनसीज वहां पे थे, आप यहाँ आ जाओ, प्रोवाइड दी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट सो दैट दे कैन कम। वो कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट जो उसने मिस किया था, वी नीड टू मेंटेन आवर बैलेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल ग्रोथ। टू सम एक्सटेंट आई एम हैप्पी, इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हमारी बड़ी कंपनियां भी अब टियर 1 नहीं, टियर 2, 3, 4 सिटीज को टारगेट कर रही हैं। यस, दिस अर्बन एंड रूरल डिवाइड हैज टू रिड्यूस। इंटरनल कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट के बीच में बैलेंस रखना है, किसी एक या दूसरे को ज्यादा नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर हैज टू बी एन इवन एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल स्टेट्स। इंटीग्रेटेड किस का मतलब क्या होता है? एक स्टेट में अगर मेरी कंपनी है जो फाइनली सारे प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करके सेल करेगा, उसके एंसिलरीज अगल बगल स्टेट्स में भी तो हो सकते हैं। यू गेट एन इंटीग्रेशन। अगर इसी तरह से अगर लेटर से तमिलनाडु में मेन कंपनी है, उसके मेरे आंध्रा एंड कर्नाटका या तेलंगाना यहाँ पे मेरे एंसिलरीज हैं जो आ रहे हैं, उसी तरह से कर्नाटक वाले यहाँ, आंध्रा, महाराष्ट्र, अपने केरला, जब इस तरह से इंटीग्रेशन होता है ना, तब एवरीबडी लुक्स एट एवरीबडीज ग्रोथ। एक दूसरे के पत्ता काटने के लिए नहीं आते हो आप, पत्ता काटना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे को साथ मिलके बढ़ोगे, इस तरह से करोगे तो यू विल हैव अ बेटर स्प्रेड, बेटर बैलेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल, you will get a better internal consumption and exports and you will grow. इसमें हमें एक चीज लास्ट में वो कवर करूंगा मैं, you have to make sure that there is a capability development of your security forces, very important, to ensure a stable internal and external security environment. इसके बगैर economic growth is going to be tough. Let's be clear on that, कि जब तक आप सुदृढ़ नहीं हो, economic growth इज डिफिकल्ट। उसके नेक्स्ट जो दिया है मैंने, सक्षम, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी रिसोर्स सिक्योरिटी। जब तक आप ये सक्षम और सुदृढ़ता नहीं है, तो जो सेकंड पॉइंट जो मैंने दिया था, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ा डिफिकल्ट है होगा। ये तीनों के बीच में आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है जो मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, हम सब हाईटेक के पीछे भाग रहे हैं। आई एम सॉरी, MSMEs are the font of all your economic growth. MSMEs में आपके सारे एंसिलरीज MSMEs में आते हैं। बड़ा कंपनी बना के क्या करोगे घंटा, जब MSMEs को नहीं सपोर्ट करोगे आप। जिस तरह से बड़े कंपनीज हाईटेक को आप सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज ऑल्सो सपोर्ट द लो एंड मीडियम टेक ऑल्सो। लो और मीडियम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऑल्सो हैव अ ह्यूज मार्केट। आपको पिन चाहिए होता है, आपको जूते चाहिए होते हैं, सॉक्स चाहिए होता है, आपको छोटे छोटे आपके ये तार चाहिए होते हैं, केबल्स चाहिए होता है, चार्जर चाहिए होता है, आपको यूपीएस चाहिए होता है, बल्ब चाहिए होते हैं ना। देयर सो मेनी थिंग्स इन लो टू मीडियम टर्म, इट्स अ ह्यूज मार्केट। हम अंधे हो रहे हैं, केवल एआई क्वांटम एआई ये वो यही देख रहे हैं। हाईटेक, यस, हाईटेक हैज इट्स प्लेस, बट लो एंड मीडियम टेक हैव अ ह्यूज मार्केट। और उस हाईटेक के अंदर काफी लो एंड मीडियम टेक के सामान भी लगते हैं। मिसाल के तौर पे हम रोते हैं कि भाई अगर आप आपके कॉमर्स मिनिस्ट्री के उसमें जाके आप अपने एक्सपोर्ट्स का टेबल, इंपोर्ट्स का टेबल देखोगे, कई लोग कहेंगे कि भाई हम रिएक्टर्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो हेडिंग में रिएक्टर दिया होता है। रिएक्टर हम नहीं कर रहे, उसके अंदर देखोगे सारे लो एंड मीडियम टेक, बुश, वॉशर, नट, बोल्ट, पाइप, योर होजिंग, ये ले रहे हो वहां से, आप बना नहीं सकते। इन्हीं के लिए तो मैं कह रहा हूं ये MSMEs को सपोर्ट करना है, आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, इनको देना चाहिए जो आप कहते हो हॉलिडे फ्रॉम टैक्सेशन 5 years 7 years टू बिल्ड देम अप। तभी जाके आप डिपेंडेंसी जो आप चीन में लगा रहे हो, बल्क ऑफ योर डिपेंडेंसीज आर लो एंड मीडियम टेक। और जब तक वो उसके लिए आप एनवायरनमेंट नहीं बनाओगे,
तो आप कैसे लेके आओगे इंडस्ट्री को यहां पे? एक कोई इंडस्ट्री होता है वो सब कुछ नहीं बनाता। अगर मैं कार बना रहा हूं, कार का हर पार्ट नहीं बनाता मैं, मेरे एंसिलरी होते हैं जिससे मैं लेता हूं, वो ला के देते हैं मेरे को, मैंने क्वालिटी चेक किया होता है, मेरे बंदे चेक करते हैं, वो बना के देता है और मैं लाता हूं उसके अंदर। मैं एक जगह सब कुछ को इंटीग्रेट करता हूं। जो क्रिटिकल पार्ट होते हैं 20 मैक्स 30% वो मैं बनाता हूं, बाकी 70% एंसिलरी से आता है। वो एंसिलरी को आप सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या बनाओगे आप? अब इलेक्ट्रिक कार बोलते हो, ठीक है, बैटरी चाहिए, दैट इज हाईटेक बैटरी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आपको मैग्नेट चाहिए, बनाते हो आप? इलेक्ट्रिक मैग्नेट चाहिए, आप बनाते हो? उसके लिए कॉइल्स चाहिए, रोटर्स चाहिए, बुशेस चाहिए आपके। बाकी सब के लिए आपको तो चाहिए ना, वो आपके गाड़ी व्हील्स हैं, टायर्स हैं, उसका हब है, उसके जो टायर रॉड एंड्स हैं, कई चीजें बनते हैं। दीज आर नॉट हाईटेक यार। तो वही कह रहा हूं, हाईटेक के अंदर लोटेक बहुत सामान होता है। देयर इज अ ह्यूज मार्केट, डोंट गेट ब्लाइंडेड बाय हाईटेक ओनली, ठीक है? आई थिंक वी हैव रीच्ड द एंड सर। Yeah, we have reached the end. Uh, yeah. So I ये think we've had हमें भाई पैनिक वहां हो रहा है, हमने यहां लाना है। आर वी आर वी गोइंग द राइट पाथ टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड गेट देम? तो मैंने जो कोर्स करेक्शंस मेरे तरफ से जो दिखा था वो मैंने बताया है कि भाई साहब, ये जो 3 चीज बताए हैं, सुदृढ़, सक्षम, समृद्ध, और समृद्धि में लो टेक और मीडियम टेक को भी जोर देना है। MSMEs need a lot of hand holding, your startups need a lot of hand holding. Please start doing that. Yeah, I think that was a very clear idea we've given to you. Okay, where is China going? And why China is in panic? जो भी वो कर रहे हैं उसका लॉजिक हमें नजर नहीं आ रहा, उसका लॉजिक उल्टा नजर आ रहा है। आप सब बोल रहे हैं स्टिमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस। Most people who have commented on the stimulus say the stimulus goes to the supply side when the stimulus should have been to the household and the consumption side. तो पैनिक है भाई, वो बटन गलत दबा रहे हैं, क्योंकि उनको देख सब कुछ सोच विचार सब ये है। So there's a major problem in China. We'll take just a couple of questions, Rajiv, if you don't mind. Now, before we take any questions, and